नमस्कार, मैं हूं खबर भारती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 नेटवर्क। फटाफट खबरों के लिए आइए देखते हैं B3। नहीं वो तो देखो, मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीजें वो बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी भी, हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता, व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं। पहले ट्रंप आया, फिर गया, फिर आया, मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट, पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज का तो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, बात वो नहीं। धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर जगह और एक दूसरे के रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो अब नया जमाना है, लोग फ्लाइट में भेजते हैं, और दूसरे छोटे छोटे जो ये है राष्ट्र है, वहाँ के लोग अपना फ्लाइट भेजकर लोगों को ला रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने फ्लाइट भेज के उनको ला सकते थे और नहीं कर रहे हैं। तो यही बात। ट्रंप को हमेशा दूसरे राष्ट्रों को ऑक्यूपाई करने का, हमास को ऑक्यूपाई करने का, हाँ, ट्रंप को दूसरे देशों को ऑक्यूपाई करने का बात कर रहा है हमास को। ना देखो वो क्या करता है देखेंगे। उसका You have to understand that you have a president who is in first month of his second term. He is driving change both domestically and internationally. Obviously, he has made a commitment to his vote bank that I will look at immigration, specifically illegal immigration, as an issue, but at the same time create more jobs. And he believes that by putting tariffs, you are able to negotiate better with the countries and manage a much more stronger, better bilateral relationship. We have seen that what he did with Mexico and Canada, and now he just imposed 25% tariff on all imports of steel and aluminum. You have to understand the relationship with India is not just about tariff. It's a geopolitical relationship, so it has an impact on a global basis. It's a relationship which is based on trade. Almost $200 billion of trade is conducted between the two countries. It's a relationship which is based on technology. A substantial amount of technology for U.S. companies, especially in global capability centers, is being built in India. And then finally, it's people to people. We have roughly 5.5 million Indian Americans who are contributing to the local economy. And even though they are less than 1.5%,
they're generating 6% of the GDP. So they're quite influential economically, politically, and in every aspect in the society itself. So the relationship, the discussion between the Prime Minister and the President is going to encompass broad areas. Yes, tariff will be one of those. Leaders at Paris CEO Forum. This is not the right time. I think the economy is in crisis. India's external and internal debt is galloping like anything. It's 61 lakh crores of rupees debt addition during these 5 years, 2019 to 2024. So within 5 years, the economy is in more crisis and the fiscal deficit has increased. GDP or a debt ratio has also increased. So economy is in crisis and I don't know what is going to happen. Moreover, Trump is in office and he will continue for another 4 years. That is going to affect India also. And Delhi BJP post. See, BJP is a party of power mongers and they are not visible because of the leadership, so-called iron hand leadership. Then after 1 or 2 years, it will be a group of dissidents only. So no one can control them. All are power mongers shifted from other political parties. It's a temporary adjustment for most of them. Since they are in power and the leaders are powerful, so some of them are joining with them. And Delhi is no exception. It will continue and even after days, they did not elect a leader. So it shows the depth of the crisis. Quote defamatory remark on army during Bharat Jodo. I don't know much about Rahul Gandhi's remarks on army, but one should be very careful while commenting on sensational issues. And army is of course a major asset of our country. So whoever makes comments should be very careful. And Rahul Gandhi sometimes speaks loosely, sometimes. And being the leader of India Alliance, he should be more careful. Leaders at Paris CEO Forum. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली विधानसभा की चुनाव की हार और खुद विधानसभा का सदस्य ना चुना जाना उनके लिए उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। पंजाब में उनकी चुनी हुई सरकार है और लगातार लोग यही बात कह रहे थे कि वो रिमोट की सरकार है, भगवंत मान को पूरे अधिकार नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर एक ऐसा दौर शुरू हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि कल उनके जितने मेंबर्स एमएलए हैं वो आए होंगे। और इस बात का संदेह कांग्रेस भी कह रही है कि हम उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। और अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी की छवि थी, शराब घोटाला और दिल्ली की जनता ने पेन घोटाला, बटन घोटाला और जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली की जनता ने उसको यहाँ से विदा कर दिया और निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार जाने वाली है, ऐसा खबरों से बातचीत में पता लगता है। जो सत्ता पलट है वो जल्दी होने वाला है। घबराहट तो वाजिब है कि उनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब उन्होंने अभी तक जनता को धोखा दिया है, अब जनता उनको धक्का देने वाली है। इसलिए जो दिल्ली में हुआ है, आज पंजाब की जनता भी समझ गई है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पंजाब की जनता भी और पंजाब के एमएलए भी चाहते हैं इनसे छुटकारा मिले। उसका पर्दे से सारा दिखाई भी दे रहा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पंजाब इस गिरोह से जल्दी छुटकारा पाएगा। जी। ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो योगदान है, और आज भी हम लोग कहते हैं कि अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करती है और वफादारी साबित करने के लिए
भाजपा के नेता जो भी हैं वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि हम आरएसएस के विचारों पे चलते हैं, आरएसएस के आइकॉन्स को समय समय पर नाम लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शर्मसार होना पड़ता है देश को। जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे लोग, उनको अगर हम देश में हम स्वतंत्रता सेनानी मान लें तो फिर 1947 की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। अगर किसी को महात्मा गांधी से प्रेम नहीं है तो सरदार पटेल भी उसी गुजरात से आते थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। लेकिन सावरकर जैसे लोग, केवल सावरकर नहीं, कल के दिन तो कोई कहेगा कि नाथूराम गोडसे भी फ्रीडम फाइटर थे। जो परिस्थितियां बनाई जा रही है देश में, तो इससे केवल हम शर्मसार होते हैं, कहीं हमारी छवि उससे ठीक नहीं होती। विधायक अमानतुल्लाह खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विधायक अमानतुल्लाह खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विधायक अमानतुल्लाह खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए औद्योगिक क्रांति ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा बन सकता है। सर्विस इंडस्ट्री से कभी भी कोई देश बहुत मजबूत नहीं बन सकता। अगर चाइना आज जो कुछ भी आज है वह केवल और केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के कारण है। भारत में 2014 तक की परिस्थितियां दूसरी थी और घोटालों की भेंट हमारा बहुत बड़ा 10 साल का कार्यकाल चढ़ गया, वरना अटल जी के समय में भी काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ था। और यह एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल साफ है कि इस देश के युवाओं को रोजगार देना है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों को लगाना आवश्यक है। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया सामान हर घर में रहे, और उसके लिए भारत का औद्योगिकरण करने का लक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, और विश्व के सारे जो उद्योगपति हैं वह भी भारत पर भरोसा करके यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। आज केवल आईफोन में 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सैमसंग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। तो जब तक हम अपना विदेशी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब तक उद्योग आगे कैसे बढ़ेंगे। स्पष्ट है कि पंजाब में सब ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब। वहाँ पर नीचे भगवंत मान का, अरविंद केजरीवाल का विरोध है, खास कर चुनाव हारने के बाद वह थोड़ा मुखर हो गया है। 93 विधायक बुलाए थे, उसमें से 8 नहीं आए, और उनमें से एक ने तो ओपनली चैलेंज किया है, ओपनली कहा है कि भगवंत मान को उठाना चाहिए। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार विधायकों ने अंदर कहा भी कि भगवंत मान हमारी सुनवाई नहीं करता, जब भगवंत मान से मिलना मुश्किल है, भगवंत मान नीचे जो कार्यान्वित करना है काम वह कर नहीं पा रहा, तो वहाँ पर भी विरोध है। अब इसको किस रुख जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा मामला, ये समय की बात है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि केजरीवाल को अब दिल्ली के बाद पंजाब को लेकर खतरा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, स्पष्ट है कि पंजाब में सब ठीक नहीं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ चीज कॉमन है तो वह है भ्रष्टाचार और करप्शन। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी शासन चलाया है। जब ममता बनर्जी सरकार में नहीं थी, एक समय हुआ करता था कि बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो 10% से ज्यादा हुआ करता था, आज वो आधा हो गया है। बंगाल के अंदर 100% से ज्यादा पर कैपिटा फॉर्मेशन का रेट था, आज वो 80% पे आ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार ने हर स्कीम में भ्रष्टाचार करा है, पीएम आवास में भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भ्रष्टाचार,
हर एनरोलमेंट कराने में भ्रष्टाचार, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने समय समय पर कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गरीब को नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि ममता बनर्जी का फोकस सिर्फ एक बात पे है, वो है तुष्टीकरण का। जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, भले अरविंद केजरीवाल हो गए, भले ममता बनर्जी हो गई या राहुल गांधी हो गए, ये एक दूसरे से compete करते हैं कौन कितना ज़्यादा जनता को लूटे, कौन कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करे। इसीलिए जब चुनाव आते हैं तो जनता इनसे त्रस्त होकर इनको हराती है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता ने हराया, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट्स दिल्ली के अंदर दी, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र की जनता ने हराया, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता ने बोला नहीं चाहिए, और ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में बिहार के अंदर आरजेडी के शासन को जनता बोलेगी हमें वो लूट वाला शासन नहीं चाहिए, और ममता बनर्जी को जब बंगाल का चुनाव आएगा जनता बोलेगी कि हमें लूट और तुष्टीकरण का शासन नहीं चाहिए। आज देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है गरीब की सेवा मोदी जी करते हैं, गरीब को लूटने का काम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और तेजस्वी। तृणमूल different occasions on his remarks which were actually defamatory, derogatory, either against persons or against institutions. Now, for making any defamatory allegations and remarks against the army, one border road organization retired officer has filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi in Lucknow court, and for which he has been summoned. It is not new for Rahul Gandhi to make statements which are derogatory against the army, against the persons, and he was also once convicted by the Gujarat court. Now, of course, there is a stay on it and the appeal is pending. He was also warned by Supreme Court on several occasions with regard to his remarks. And then even in Rafale issue also Supreme Court Supreme Court in fact warned him not to make any false allegations. And now it is in the court of Lucknow that he has been summoned. Mr. Rahul Gandhi has always taken a stand which is against the country's interest. He makes a statement against those organizations which work for the country and country's unity. So therefore, when he goes to abroad, he also makes statement against the Indian system, Indian organizations, Indian army and Indian government. The attitude of Mr. Rahul Gandhi is very clear that he is frustrated and people have seen him that he is immature. Therefore, he must now learn to respect the institutions of this country. Political criticism is definitely welcome. They have every right to do it. But criticizing and making false and derogatory statements and remarks on the organizations which protect our country is highly anti-national. And such remarks by Rahul Gandhi is the thinking and is idea, in fact, the concept of all the parties which are in India Alliance. Now they must clarify whether what Rahul Gandhi speaks about these institutions which are derogatory, whether these India Alliance groups stand by him or they opposite. कांग्रेस से उदित राज का ट्वीट आता है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी को याद ही करना था तो महात्मा गांधी को कर सकते थे, लाल लाजपत राय को। वीर सावरकर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए, ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं, हम सब के लिए वो गर्व की बात है। कांग्रेस ने बोला कि ये करके नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि भारतीय लोग कावर्ड, डरपोक हैं, जिस तरह से वीर सावरकर ने भी। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। सर, एकनाथ शिंदे जी को जो है ऑनर किया गया है महाजी शिंदे राष्ट्रीय गर्व अवार्ड से, जिसपे जो शरद पवार जी ने भी उन्हें कमेंट किया, किस तरीके से आप? किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। कांग्रेस से उदित राज का ट्वीट आता है कि अगर प्रधानमंत्री को किसी को याद ही करना था तो महात्मा गांधी को कर सकते थे, लाल लाजपत राय को। वीर सावरकर पे सवाल हालांकि उन्होंने की है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे क्योंकि सस्पेंस पर सबकी निगाह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास संपन्न नेतृत्व है। तो इस नाते से जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। दिल्ली के मामले में भी ऐसा ही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड जनादेश दिया है। उस जनादेश का भाजपा सम्मान करती है और इस नाते से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके संकल्पों को दिल्ली में कोने कोने तक लेकर के जाना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य। और उस दृष्टि से भाजपा का कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको नामित करेगा और वो दिल्ली को हालांकि उन्होंने की है, लेकिन के लिए मना कर दिया था, लेकिन एक अभी भी भारी जनसैलाब वहाँ बढ़ रहा है। किस तरीके के इंतजाम है वहाँ पर, कैसे आप देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वहाँ जैसी व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। कुछ कमियां रह गई, कुछ चूक रह गई, जिसकी जुडिशियल जांच हो रही, जिससे इतनी ढेर सारी मौतें हुई। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। मेरा एक विनम्र आग्रह है, आज शाही स्नान के बाद लोग जाना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों का कल्पवास पूरा हो जाता है, बहुत से लोग जाना चाहते हैं। बहुत कम लोग बचते हैं जो शिवरात्रि तक रहते हैं वहां पे, 15 दिन की प्रतीक्षा करते हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस समय सब छोड़कर एक काम करे कि जो लोग वहां हैं वो कैसे बाहर वापस लौट के जा सके, इस पर प्रथम प्राथमिकता और वरीयता दे, जिससे न भगदड़ मचे। और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, सरकार उनकी सहायता करके निकाले। समाचार आ रहा है, आज मैं टीवी देख रहा था, 500 रुपए का एक पराठा मिल रहा है। तो जो लोग लाए थे पैसा, जो लोग पैसा लाए थे, वो पैसा भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो उनको अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकालने के लिए सब्सिडाइज करें, हर संभव प्रयत्न करें कि कैसे प्रयागराज में जो लोग इकट्ठा हैं वो अपने गंतव्य। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है, उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं। और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। देश विदेश से आए हैं और संगम में आज अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। हम सब ये जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ही दुखी हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। उनका पूरा जीवन रामलला के चरणों में बीता, रामलला की सेवा करने में बीता। वो पुण्य आत्मा थे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने प्रभु रामलला की सेवा की है, उनके अनुयायियों को भी इस प्रकार की ऊर्जा दें। आज अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। हम सब ये जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ही दुखी हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और
उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। उनका पूरा जीवन रामलला के चरणों में बीता, रामलला की सेवा करने में बीता। देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहाँ पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। देखिए, चूँकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है, मेला, वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशंस को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन्स हैं और जो रेगुलर ट्रेन्स हैं उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे याद कर रहे हैं? सत्येंद्र दास जी महाराज का शरीर आज शांत हो गया। लखनऊ के PGI में प्रातःकाल 7 बजे के लगभग उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लखनऊ के PGI में उनका इलाज चल रहा था। उनके शिष्य प्रदीप दास उनके साथ थे। परिस्थितियों में उतार चढ़ाव चलता रहता था। शायद 48 घंटे पहले परिस्थितियां ज़्यादा विकराल हो गई थी और उन्हें चिकित्सा के माध्यम से शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। माघी पूर्णिमा का पवित्र दिन है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद भी जो मुख्य पुजारी के रूप में रामलला की सेवा किए हैं, ऐसे पूज्य सत्येंद्र दास जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। यद्यपि जो संसार में आता है वो जाता है, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त किया है वह अद्भुत है और सदैव आंदोलन में लगे हुए कारसेवकों को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को वह अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। उनके दुखद निधन पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूज्य। चलिए खबर भारतीय को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फटाफट खबरों के लिए B3। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत से खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया 24/7 नेटवर्क।